بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ बहुत ही नायाब और बहुत ही आला किस्म का अमल है। मैंने पहले भी आपको बताया है, ये अमलियात जो उनसे मैं आपको बता रही हूँ ये उन बहनों के लिए हैं जिन्होंने बहुत फरमाइश की है अपनी, अगर हमें कुरान पाक नहीं आता या हमें ज़ेर ज़बर की गलती होती है तो आप ही कुछ ऐसे भी हमें जो है इल्म बख्शें या इतने ऐसे भी नया मतलब के मालूमात दें और वज़ाइफ बताएं और अमलियात वगैरह बताएं जो हम बआसानी कर सकें। ठीक है, तो आज ये सब जो अब वज़ाइफ में पेश कर रही हूँ ये उन्हीं बहनों और भाइयों के लिए है जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ ये भी बहुत ही नायाब है, ठीक है, बहुत ही आला है। आपने क्या करना है, आपने तरीका, इसका कोई ज़ुकात नहीं है, इस अमल की कोई ज़ुकात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने बस पढ़ाई करनी है और 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह बच्चे पर हाज़रात का नुज़ूल होगा। बहुत ही नायाब मुक़ल्लिन है, इनको अदब से बच्चे को कहिएगा सलाम करें और जब तक वो बच्चे की जिंदगी है उसके ऊपर कोई परेशानी दुख तकलीफें कभी भी नहीं आएंगी और वो बच्चा बहुत नायाब और बुलंद और बाला रहेगा जिनके ऊपर इन बुजुर्गों की हाजिरी होगी। आपने पढ़ना क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का वसीला, ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा वकीला, हाज़रात को हाजिर कर इसराफीला। ठीक है, ये ऐसे अमल है, ये ऐसी रहमतों के अमल है कि अल्लाह पाक ने जो बुजुर्गों के मतलब कि ये ऐसे नायाब बताए हुए अमल है कि यकीन माने कि इन अमलों की इतनी मेहरबानी है कि सिर्फ इन अल्फाजों से ही हाज़रात पे मुक़ल्लिन का नुज़ूल होता है। उन बुजुर्गों ने पढ़ाई की, अल्लाह पाक ने इन लफ्जों से उन्हें ये शर्फ बख्शा। तो आप लोगों के लिए भी यही है कि बहुत रहमतों के ये जो उनसे मुक़ल्लिन है इनका बहुत ज्यादा जो है रुतबा है। अदब से इनको सलाम कीजिएगा और सलाम के बाद अपने जितने भी अपने मसाइल पूछनी है या मतलब कि कोई बात पूछनी है, हाल अहवाल पूछना है, वो भी आप पूछ सकते हैं, तो मुकम्मल आपको सही जवाब देंगे। और आपने क्या करना है, अगर खुद पर करना है तो मगरिब की अजान से पहले इस अमल को आप अपने ऊपर पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे जब तक मगरिब की अजान नहीं हो जाती। एक से दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन तक इंशाअल्लाह आपके हिजाब के पर्दे उठ जाएंगे। जो लोगों को रूहानी कुव्वतों का मसला है या उनकी रूहानी कुव्वतें कमजोर हैं वो ये अमल लाज़मन किए करें, तो इंशाअल्लाह उनके भी हिजाब के पर्दे खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत नायाब अमल है। तो आपने क्या करना है, अगर किसी बच्चे पर कर रहे हैं तो सिर्फ 10 बजे का टाइम है, 10 बजे को ज्यादा अच्छी मतलब हाजिरी होती है, तो 10 बजे बच्चे को नहला धुलाकर इतर से मोतर करके कपड़ों को तो उसको बिठाएं। और अगर आपको ये डर खौफ है या कोई मसला ना हो जाए तो फिर आप हिसार भी कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ के, चारों को 3-3 मरतबा पढ़ के फूंक मारे अपने ऊपर भी बच्चे के ऊपर भी और ताली बजा दे 3 मरतबा, तो वो हिसार जहां तक ताली की आवाज जाएगी वहां तक हिसार कायम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी नहीं तो फिर आपने उंगली से हिसार कायम कर लेना है, गोल दायरा खींच लेना है, चाक से खींच ले, अगर मट्टी वाली जगह है तो फिर छुरी से खींच ले। ठीक है, उसके ऊपर फूंक मारे और छुरी से भी हिसार खींचा जा सकता है। तो इन चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि जब परहेज में हमने करवाया तो आपको इन चीजों हिसार वगैरह की जरूरत नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत नायाब मुक़ल्लिन है, तो ये मुक़ल्लिन के अमल इसलिए पेश किए जाते हैं कि वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते और रहमतों के बुलंद और बाला, मैं कहती हूँ कि जिन्नात और हमजात इन चीजों को छोड़ें, अल्लाह की रहमतों के मुक़ल्लिन को देखें तो आपको खुद एहसास होगा कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। ठीक है, तो आपने बच्चे को नहलाकर, कपड़े पहनाकर, अतर लगाकर, खुशबुएं लगाकर, परफ्यूम में लगा लीजिएगा, खुदा ना खासा परफ्यूम में लगाइएगा और ना पाउडर वगैरह इस्तेमाल कीजिएगा। ये पता नहीं है आपको किस चीजों के बनते हैं, तो खालिस फूलों के होते हैं तो वो लगाइएगा। ठीक है, बच्चे के नाखून के ऊपर या हथेली के ऊपर सीधे साइड पर तो जो काजल बताया गया है हाजराती स्याही का वो आपने जो है लगा लेना है। ठीक है, नाखून में ओर से देखने को आपने फिर कहना है और
آپ نے کیا کرنا ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے لا الہ الا اللہ کا وسیلہ، تو یہ آپ نے جو عمل ہے جو سکرین پر بھی چل رہا ہے 101 مرتبہ پڑھ کر بچے کے پر پھونکنا ہے۔ اگر خود حاضری کر رہے ہیں تو پھر 101 مرتبہ پڑھ کر خود پر ہتھیلی پر آپ پھونک ماریں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات موکلین کا نزول ہوگا، بچے سے بزرگ ہستی کو سلام کروائیں، جو موکلین حاضر ہوتے ہیں ان کو ادب سے سلام کروائیں، اور اپنے مشکل امور کے مسائل کے بارے میں 100% درست آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت نایاب عمل ہے، کر کے دیکھیے گا۔ پہلے اگر آپ نے جاننا ہے کہ عمل کے اندر کتنی پاور ہے تو آپ نے سب سے پہلے بچے کے پر عمل کریں، بچہ یا بچی، چھوٹا بچہ بچی نابالغ ہو اس کے پر عمل کریں تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک کوئی اچھا بچہ آپ کو مل جائے یا بچی مل جائے جس کے بس آپ یہ کر سکتے ہیں۔ خود پہ کرنے کے لیے جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے وہ مغرب کے کچھ دیر پہلے، تو 3 دن تک آپ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ بآسانی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ